Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue chapter 4 and in this chapter the today's topic is population composition. So students, first of all, what is population composition? Population composition means the ratio of rural and urban population. Population composition का मतलब होता है रेशो, इसके बीच में अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बीच में. So people living in villages are engaged in agricultural or natural activities and they are called rural peoples, rural population, while the population who lives in or engaged in the cities and they are doing non-agricultural activities like industries and other service sectors. So these people are called urban population. स्टूडेंट, पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम रेशियो लेते हैं अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का. अर्बन पॉपुलेशन वो होती है जो शहरों में रहती है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, जबकि रूरल पॉपुलेशन वो होती है जो गांव में रहती है और एग्रीकल्चरल वर्क, फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व होती है. राइट. तो यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं. इनका एज सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेवलपमेंट लेवल, ये सब एक दूसरे से अलग होता है. द एंटायर थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. एंड डू यू नो दैट more than 50% population, more than 50% total world population lives in cities. 50% से ज्यादा population शहरों में रहती है. And on the global level, urban population is undergoing an annual increase of 6 crore. बहुत तेजी से urban population increase हो रही है और annually इसमें 6 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 3 गुना इंक्रीमेंट है. 38% ऑफ पॉपुलेशन इन एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट लिव्स इन अर्बन एरियाज. एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 30% पॉपुलेशन कवर, अर्बन पॉपुलेशन कवर एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 38% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रिसाइड करता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का जो परसेंटेज है वो 75 से 78% है. इट मींस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैविंग मोर अर्बन पॉपुलेशन. See table 4.4 and graph 4.3. According to table 4.4, here the continents are given and total population cover, urban and rural population also mentioned. In Asia, the total population is 368 and out of 368, 138 lives in urban areas and 229 lives in rural areas. Percentage क्या है? 38% urban population और 62% rural population है एशिया कॉन्टिनेंट की, जबकि अफ्रीका में 78 करोड़ पॉपुलेशन है और उस 78 करोड़ में से 29 करोड़ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में और 48 करोड़ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रहे हैं. अगेन द परसेंटेज 38, लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज एंड मोर नंबर्स लिव्स इन रूरल एरियाज. इन यूरोप द टोटल पॉपुलेशन इज 79 करोड़ एंड आउट ऑफ 79 करोड़ 54 करोड़ पॉपुलेशन resides in urban areas and 18 crore population resides in rural areas, and the percentage is 75-25. The ratio is 75-25. In South America, beta ये अमेरिका है. South America, the total population lives 51 crore and out of 51, 39 crore population belongs to urban and 12 crore population belongs to rural. 75 again in percentage, the ratio is 75-25. Whereas in North America, the total population is 31 and out of 31, 23 resides in urban areas and 7 resides in rural areas. Percentage 77-23. And in Oceania,
3 crore population lives in Oceania. The entirely 3 crore population they have, and out of 3 crore, 2 crore population resides in urban areas and nearly 1 crore population resides in rural areas. And the ratio between rural and urban is 70/30. Hope you understand. Now see the graph. See the graph? By the linings. In lining the rural population shown, whereas by cross lining अर्बन पॉपुलेशन shown. और आप देख सकते हैं एशिया में अर्बन पॉपुलेशन कम है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है. अफ्रीका में कम है अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है. यूरोप में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैटिन अमेरिका में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, नॉर्थ अमेरिका में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है और ओशिनिया में भी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है. Now, till the year 1800, only 25% of world's population reside in urban areas. They reside in cities. अगर हम 1900 के डेटास देखें तो 18th सेंचुरी के डेटास देखें तो 18th सेंचुरी में सिर्फ 25% पॉपुलेशन शहरों में रहता था. 1960 में ये पॉपुलेशन बढ़ करके 25 से 35% हो गया और 1999 आते आते ये बढ़ के 45% हो गया और 2004 में ये एस्टिमेशंस 50% से एक्सीड हो गए. So significant features of developing country is the increase in number of big towns. और एक significant feature ये है कि जो developing countries हैं वहाँ पर शहर जो है पहले की अपेक्षा बढ़ते जा रहे हैं. More than half of the world's population resides in towns. और आज स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहना शुरू कर चुका है. और ये डेटाज 1960 से 2000 के बीच में 1960 से 2000 के बीच में जो अर्बन पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हुआ है 800 मिलियन से 2900 मिलियन. ट्रिपल इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 3 times इंक्रीमेंट. एंड दिस ग्रोथ इज मोर देन 3 times. During this period, the total population of the world has marked is increased twice from 3 billion to 6 billion. और ये वही समय था जब पॉपुलेशन भी बढ़ करके वर्ल्ड की कितना ट्वाइस इंक्रीज हो गई थी. 3 बिलियन से पॉपुलेशन इंक्रीज होके डबल हो गई थी 6 बिलियन. तो अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन द अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू 8 बिलियन बाय 2030. एक एस्टिमेशन कहता है कि 2030 आते आते जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन होने की संभावना है, इंक्रीजिंग. And the global population figures show that in 1975, 38% world population lived in cities, which rose to 48% in 2004. And it is estimated that 61% of world's population will become urban by 2025. ये माना जा रहा है, estimations कहते हैं कि 61% population शहरी हो जाएगी 2025 तक. Very significant dissimilarities are observed in the distribution of rural and urban population across the world, and according to the distribution of urban population, the global distribution can be classified. एक बहुत dissimilarity, significant dissimilarity observe करने को मिलती है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में. चलिए देखते हैं क्या है ये. हम पूरे एंटायर ग्लोब को यहाँ अर्बन और रूरल पैटर्न में क्लासीफाई करते हैं. And now we are going to classify according to the urban population, the entire world according to the urban population. So let me start with first one, high urban population. हम यहाँ पूरे वर्ल्ड को अर्बन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हाई अर्बन पॉपुलेशन की. Those countries of the world are included in this category in which the percentage of urban population is more than how much? More than 60%. इसमें उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज 60 से ज़्यादा है. और ऐसे हाई परसेंटेज पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन वाले जो रीजन्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो हैं यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका. These 3 lies in North America. Brazil, South America, Australia, know that,
न्यूजीलैंड नियर बाय ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, एशिया, Argentina, South America, and most of the countries of European continent. These are some of the nations where more than 60% urban population found. ये वो देश हैं जहां पर 60% से ज्यादा urban population reside करता है. Now come to the medium moderate urban population. So those countries of the world are included in this category where the percentage of the urban population varies between 40 to 60%. हम मीडियम या मॉडरेट अर्बन पॉपुलेशन में उन कंट्रीज को शामिल करते हैं बच्चों जिनमें जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का, वो 40 से 60 के बीच में हो. और ऐसे में जो मीडियम अर्बन पॉपुलेशन कंट्रीज हैं वो हैं चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, वेनेजुएला, क्यूबा, जमाइका और हैती. ये वो ऐसे देश हैं जहां पर मीडियम अर्बन पॉपुलेशन, जहां का पॉपुलेशन अर्बन कितना है 40 से 60% के बीच में. नाउ कम टू द लो अर्बन पॉपुलेशन. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स कंट्रीज हैविंग लेस देन 40% अर्बन पॉपुलेशन. हम इस लो अर्बन पॉपुलेशन में उन देशों को शामिल करते हैं बेटा जहां पर 40% से कम अर्बन पॉपुलेशन पाया जाता है. और इसमें सबसे पहला नाम है हमारे इंडिया का, and then Pakistan, Bangladesh, Nepal and most of the Southeast Asian and African countries lies in low urban population. ठीक है, एशिया के नेशंस को, एशिया की जो कंट्रीज है उनको इसमें शामिल किया जाता है. So this is all about the rural urban composition of the world. Now come to the next topic, and the next topic is literacy. Do you know the meaning of literacy? या आपको पता है कि लिटरेट किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स जिसकी भी एज 7 इयर्स से अबव हो और जिसे लिखना, पढ़ना और अर्थमेटिक कैलकुलेशन आती है. अर्थमेटिक कैलकुलेशन मतलब जिनको थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान हो, रुपए पैसे का तो एटलीस्ट कम से कम हिसाब लगा सकें कि अगर किसी दुकान पे गए और 100 रुपए दुकानदार को दिए, दुकानदार ने बदले में 75 रुपीज का सामान दिया, तो उसके पास कितना आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करना आता हो. ऐसे पीपल को क्या कहेंगे हम? लिटरेट मानेंगे. लिटरेसी जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है पॉपुलेशन का. अगर लिटरेसी है ज्यादा तो वो पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंडिकेट करता है. तो the qualitative aspects of population are studied through literacy. इससे पता करते हैं हम किसी पॉपुलेशन की क्वालिटी लिटरेसी से. तो इट इज मोस्ट रिलायबल एंड एक्चुअल इंडेक्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्यों पता करते हैं? क्योंकि एक बहुत ही रिलायबल और एक एक्चुअल इंडेक्स शो करता है उस कंट्री के डेवलपमेंट का, उस कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक. एक्सेसिव वेरिएशंस आर फाउंड इन लिटरेसी रेट एट द वर्ल्ड लेवल. और जैसे कि अदर कंपोजिशन में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वैसे ही लिटरेसी में भी एक्सेसिव वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. लिटरेसी रेट भी अगर हम वर्ल्ड की देखें तो डिफरेंशिएटिंग है. लिटरेसी रेट रिप्रेजेंट दैट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन विच पर्सन्स अबव द एज ऑफ हाउ मच ईयर 7 years who can make understand each other in their daily life through reading and writing. In determination of Human Development Index, literacy is taken as a credible indicator of socio-economic, cultural and political development. Literacy का मतलब 7 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति, बच्चे जिनको पढ़ना लिखना आता हो, आपस में एक दूसरे की बात समझ सकें, भले ही मीडियम उनका अपना लोकल लैंग्वेज क्यों ना हो. जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है हिंदी आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए. कोई भी लैंग्वेज जिसे वो बिलोंग करते हैं उसको समझ सकें, उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ सकें, तो ऐसी व्यक्ति को लिटरेट माना जाता है. और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को शो करना है तो लिटरेसी जो है एक क्रेडिबल फैक्टर होता है, क्रेडिबल इंडिकेटर होता है. लिटरेसी से ही पता चलता है कि किसी रीजन का, किसी एरिया का, किसी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा है. तो इनफैक्ट
poverty alleviation, agricultural development and international relations. Literacy is an essential element. अगर हमें किसी कंट्री का poverty alleviation, agricultural development और international relations पता करना है, तो अगर literacy level अच्छा है तो ये बहुत easily पता किया जा सकता है. तो this is so because literacy influences the reproduction, death rate, dynamism and occupation etc. ऐसा हमने क्यों किया बेटा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिटरेसी इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन सिस्टम को, डेथ रेट को, डायनामिज्म को, ऑक्यूपेशन को. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे, लिटरेसी इन सबको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? बेटा देखिए, अगर ह्यूमन लिटरेट है, अगर पॉपुलेशन लिटरेट है, तो वो समझेगा कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो बर्डन है और पॉपुलेशन जितना कम से कम हो उतना ही नेशन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. अगर व्यक्ति लिटरेट होगा तो अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ इनसे अवेयर होगा. डेथ रेट कैसे रिड्यूस होगी? अगर पॉपुलेशन एजुकेट होगा, लिटरेट होगा, तो लिटरेसी से उसको ये पता चलेगा कि कोई बीमारी जो है उसका क्योर कैसे किया जाता है. तो इन सब के लिए लिटरेसी जो है एक बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का. तो दस एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ अवेलिंग सुटेबल अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी. तो हम ये मान सकते हैं कि एजुकेशन जो है सोसाइटी में सुटेबल अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड देयरफॉर इज ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टर of a reason, the importance of literacy is the greatest. Now, the major factor that affect the literacy rate are level of economic development. अब ये तो हमने बता ही दिया कि भाई लिटरेसी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स है. तो फॉर एवरी एडवर्स सिचुएशन देयर आर सम फैक्टर्स responsible, and of course for literacy also there are some factors which affect the literacy rate. And the first factor which affect the literacy rate is economic development, urbanization, standard of living, social status of women, and various facilities and government policies. These things affect the literacy rate. अगर economic development होगा तो literacy भी ज़्यादा होगा. कैसे? अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी तो वो अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे. अर्बनाइजेशन, अर्बनाइज्ड वो एरियाज होते हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज होती हैं. भाई अगर हम यहाँ देखें तो ज़्यादातर गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं इन कंपैरिजन टू अर्बनाइज्ड एरिया. क्यों? क्योंकि गांव में जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती हैं, जबकि अर्बनाइज्ड एरिया फुल विद फैसिलिटीज़ होते हैं. लिटरेट होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, जीने का तरीका समझेगा कि क्या उसके लिए बेहतर है और क्या नहीं. सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव होगा. हम खासतौर से यहाँ वुमेन की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे कम लिटरेसी रेट हमें वुमेन्स में ही देखने को मिलता है. तो अगर अपनी लाइफ को अच्छी बनाना है तो लिटरेसी लेवल को इंक्रीज करना ज़रूरी है. और लिटरेसी लेवल इंक्रीज होता है तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करने में मदद करता है. नाउ सी द टेबल 4.5. Here the global literacy rate according to the year 2008 mentioned, and reasons are developing countries, underdeveloped, Arab countries, East Asia, Latin America, South Asia, सब सहारा अफ्रीका, मिडल और ईस्ट यूरोप. इस तरीके से ग्लोबल लिटरेसी रेट यहाँ पर दिया हुआ है डेटा. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2008 के अकॉर्डिंग ये डेटा पब्लिश है. और डेवलपिंग नेशंस में 76% लिटरेसी पाया जाता है, जबकि 15 से 24 ईयर्स की पॉपुलेशन में 85% लिटरेसी. अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में लिटरेसी रेशो 54% है और 15 टू 24 के बीच में 64 है. ये मोर देन 15 ईयर्स के डेटाज है और ये 15 से 24 ईयर्स के बीच के डेटाज है. और हम सभी जानते हैं कि यही एज ग्रुप होता है जो पढ़ाई करता है. ठीक है. अरब कंट्रीज 64, 81, ईस्ट एशिया 90, 98. इसका मतलब ईस्ट एशिया में लिटरेसी ज़्यादा है. लैटिन अमेरिका 89, 95, साउथ एशिया 58, 72, सब सहारा रीजन, सब सहारा अफ्रीका 61, 73 एंड मिडिल और ईस्ट यूरोप 99, 99.
means highest literacy found in which continent or which part of the world, the middle or the East European part of the world, having high literacy. Now, here some of the countries mentioned which having the 100% literacy, and out of these countries, see, Japan, Australia, Denmark, Finland, Sweden, Norway, these all countries having 100% literacy. जहाँ वर्ल्ड का लिटरेसी entirely 77 है, वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे कुछ ऐसे देश हैं बेटा जहाँ पर लिटरेसी जो है 100% है. So in countries where special attention is paid to literacy and education, there the population registers prosperity and progress in various fields. जिन भी देशों में लिटरेसी और एजुकेशन पर स्पेशल अटेंशन रखा जाता है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो श्योरली उस कंट्री में प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस जो है वो दिखाई देता है. गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक्स एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस एंड. और लगभग आज का समय ऐसा है बेटा कि हर नेशन की गवर्नमेंट इस रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स वगैरह बनाती है, एफर्ट लगाती है. Prosperous and unbanished economies reflect higher literacy rate and higher education level. जो भी कंट्री जो prosperous हैं और basically urbanized हैं, prosperous and urbanized economies reflect higher literacy rate and higher education level. बेटा जो भी nations prosperous हैं और urbanized हैं, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ हायर लिटरेसी की वजह से ये प्रॉस्पेरिटी और अर्बनाइज्ड एरियाज पॉसिबल हैं. एंड सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स दिस. और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर डेवलप्ड नेशन में प्रॉस्पेरिटी और अर्बनाइजेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी और एजुकेशन का लेवल हाई है, तो डेवलपिंग नेशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज को भी इसके बिहाफ पर ज़्यादा स्पेशल अटेंशन रखना चाहिए. डेवलपिंग नेशंस को भी एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी का रेशो इम्प्रूव करना चाहिए. होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टॉपिक्स वेल. So now students, the next topic and the last topic of this chapter is occupational structure of population. Students, according to the employment of the working population in various occupation or activities is studied under the occupational structure. हम employment को, वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसके वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ को इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कंसिडर करने वाले हैं. एंड द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ एंड अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन. सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? वर्किंग जो स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से काम में एंगेज्ड है, उसको कहते हैं. ये इनकम स्ट्रक्चर होता है एक तरह से. ह्यूमन अपने सर्वाइवल के लिए वर्क करता है और ऐसे वर्क जिनको करने के बदले में उसको इनकम गेन होती है, उसे उसका ऑक्यूपेशन कहा जाता है. और वेरियस काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्रिवेल्ड इन एवरी नेशन. हर नेशन में तमाम तरह के, बहुत सारी तरीके के ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं. और इन ऑक्यूपेशंस को, इन वर्किंग कंडीशंस को हम बेसिकली 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नेशन, यूनाइटेड नेशन, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन. बहुत सारी तरह के ऑक्यूपेशनल कैटेगरी हैं. अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन ने बहुत तरह के कामों को कैटेगराइज किया है अलग अलग एक्टिविटीज में. एग्रीकल्चर, खेती करना. फॉरेस्ट्री, जंगल से चीजें इकट्ठे करना. हंटिंग, शिकार करना. फिशरीज, मछली पालन करना. एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन करना. माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, खदानों से माइनिंग, मिनरल्स ऑब्टेन करना, निकालना. कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन का यूज कमर्शियल पर्पस से करना.
सामान और यात्री को ढोना, बदले में पैसे लेना। कम्युनिकेशन, संचार के साधन। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये सब हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क होता है जिसमें प्रोसेसिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, हेल्थ सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, ये सारे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं। एंड अदर अनक्लासिफाइड ऑक्यूपेशन टू इंक्लूडेड इन दिस। दिस क्लासिफिकेशन इज डन फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों हम क्लासिफाई करें इन सब कैटेगरीज को, इन सब ऑक्यूपेशन को? बेटा, इससे इंटरनेशनल कंपैरिजन इजी हो जाता है, नेशन टू नेशन। इसे पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, राइट? तो बट एवरी कंट्री क्लासिफाइड इट्स पॉपुलेशन इनटू वेरियस ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस टू इट्स नीड्स। अपनी जरूरत के हिसाब से वैसे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है ऑक्यूपेशन को, नेशंस के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी जरूरत। और हम वर्किंग पॉपुलेशन किसको मानते हैं? जो एज ग्रुप 15 से 59, हमने अर्लियर भी बात की थी कि ऐसा एज ग्रुप जो 15 से 59 के बीच में, जो 15 से 59 के बीच से संबंधित होता है, उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। उसमें मेन और वुमेन दोनों ही शामिल होते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन सेवरल काइंड ऑफ वर्किंग activities and they belongs to this category. So in countries having underdeveloped economy, a higher percentage of population is found to be more active in primary occupation. चलिए यहाँ पर मैं आपको क्लासिफाई कर देती हूँ 3 कैटेगरी को। देखो बेटा, कैटेगरी वाइज हम नेशंस को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। पता है बच्चों कि ये क्लासिफिकेशन होता किस आधार पर है? ये क्लासिफिकेशन होता है इन्वॉल्वमेंट के आधार पर, कि पॉपुलेशन किस तरीके के वर्क में, किस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। जो कंट्री जिसकी पॉपुलेशन जो है सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है, वो डेवलप्ड नेशन कहलाते हैं। द कंट्री हु इज एंगेज इन प्राइमरी, secondary and tertiary, all the sector, but the ratio of secondary and tertiary is lower than primary. अगर प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन कवरेज ज्यादा है और सेकेंडरी टर्शरी में कम है, तो वो डेवलपिंग कहलाती है। अंडर डेवलप्ड नेशंस वो होते हैं जो टोटली आज भी प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्वमेंट जिनका ज्यादा है। So in countries having underdeveloped economies, a higher percentage of population engaged in where they are found to be engaged in primary occupation. और आपको पता, अभी मैं आगे और क्लासिफाई करूंगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऑक्यूपेशंस होते क्या हैं। इन डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, a higher proportion of population is found to be more active in secondary and tertiary occupations. So in highly developed and industrial countries, 40 to 45% of working population is active in tertiary occupation. आपको पता है, जो हाईली डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होती हैं, उनका 40 to 45% पॉपुलेशन टर्शरी ऑक्यूपेशन में, सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, 60 to 70% पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद दीज ऑक्यूपेशन। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, बेसिकली ब्रिटेन वगैरह, यहाँ पर 60 से 70% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में engaged हैं, and the percent of population employed in quaternary occupation found to be comparatively lower, but their income is highest. हालांकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो क्वाटनरी ऑक्यूपेशन में कम है, लेकिन इनका इनकम जो है फिर भी हाई है। अभी मैं आपको क्लासिफाई करती हूँ। And the population associated with these give dynamism and socio-economic scenario by their ideas research. So let me clear here the primary, secondary and tertiary sector. मैंने अभी बताया आपको कि वैसे तो 5 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, पर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 3 देखिए और तीसरे को ही हम क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 सेक्टर्स होते हैं नॉर्मली। और आजकल 2 और सेक्टर इंक्लूड हैं, क्वाटरनरी एंड क्यूनरी।
क्वीनरी। प्राइमरी सेक्टर वो एक्टिविटी होती है बेटा जो कि नेचर से कनेक्टेड हो, नेचुरल एक्टिविटीज होती है इसमें, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, इसमें हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं। ये जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में ऑब्टेन होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उनको प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल आइटम्स। जबकि टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सबको हम लोग शामिल करते हैं टर्शरी सेक्टर। अब बात आती है क्वाटनरी और क्वीनरी। क्वाटनरी और क्वीनरी भी सर्विस सेक्टर्स ही हैं। ये टर्शरी सेक्टर का ही एडवांस रूप है। जब लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्वाटनरी और क्वीनरी में क्लासिफाई होता है। जितने भी मैनेजमेंट वाले वर्क होते हैं वो इसमें, जिसे हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, जैसे टर्शरी सेक्टर में टीचर होता है, ठीक है, क्वाटनरी में प्रोफेसर और क्वीनरी में चला जाएगा डीन। समझ रहे हो? स्कूल लेवल तक अगर सर्विस सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर है तो उसे टीचर कहेंगे। कॉलेज में अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्वाटनरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा, प्रोफेसर। और अगर उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिसे हम डीन कहते हैं, वो क्वीनरी से रिलेटेड है। डायरेक्टर्स वगैरह, फिल्मों के डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको भी तो कोई कैटेगरी होनी चाहिए, तो वो क्वीनरी है। नेता, अभिनेता, ये सब किस में आएंगे? ये टर्शरी सेक्टर के एडवांस रूप में, सर्विसेज के एडवांस क्वाटनरी में और क्वीनरी में इनको शामिल किया जाएगा। जज, मजिस्ट्रेट, इनके लिए बनाई गई ये कैटेगरी। तो होप आपको सारे सेक्टर समझ में आ गए हैं और ये भी समझ में आ गया है कि जिन देशों में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इंगेज होती है पॉपुलेशन, वो देश डेवलप्ड नेशन कहलाते हैं। जहाँ पर प्राइमरी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सेकेंडरी और टर्शरी कम होती है, वो डेवलपिंग कहलाती है। और जहाँ पर पूरी तरीके से एंटायर पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो, तो वो अंडर डेवलप्ड नेशंस कहलाते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेल। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर, गुड बाय।